ठीक है। हाँ, so what is enthalpy of sublimation? Amount of heat required to convert 1 mole of solid into gaseous form is called as enthalpy of sublimation. What is called as delta of vaporization? इसके लिए तुम अपने से डिफाइन करो, क्या हो जाएगा? Amount of heat required when 1 mole of liquid is directly converted into vapor form is called as enthalpy of vaporization. लिखो जल्दी से, लिखो amount of heat required to convert, amount of heat required to convert, amount of heat required to convert, amount of heat required to convert 1 mole of 1 mole of 1 mole of 1 mole of any liquid, 1 mole of any liquid into gaseous state is called as enthalpy of vaporization, is called as enthalpy of vaporization, is called as enthalpy of vaporization. ठीक है, किसी को प्रॉब्लम टिल नाउ? Anyone is having doubt? Now the next one is an important one, enthalpy of neutralization. लिखो enthalpy of neutralization or heat of neutralization. Next heading is enthalpy of neutralization or heat of neutralization. Okay, now word is saying neutralization. Neutralization किस में प्रोसेस हो रहा होगा? When acid and base are reacting with each other. Okay, तो when acid and base are reacting with each other, उस ड्यूरेशन में जो भी हीट प्रोड्यूस होगा is called as enthalpy of neutralization. अब देखो, इसमें 1 मोल मैं नहीं बोलूंगा, वाई 1 मोल नहीं बोल रहा हूं, देखो है ना, तो ये क्या बनाएगा? दिस विल फॉर्म Na2SO4 प्लस H2O. ये देख Na2 है, तो इसलिए दिस मस्ट बी 2, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2. अरे भाई, इसका 1 मोल तो इसका कितना? 2 मोल. बट इक्वल क्या होगा? इक्विवेलेंस. N1V1 of this equals to N2V2 of H2SO4. That's why slight change in definition for neutralization an important one. इसमें 1 मोल ना बोल करके मैं 1 इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ. लिखो, लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released when 1 equivalent of acid is completely neutralized by is completely neutralized by completely neutralized by 1 equivalent of base, 1 equivalent of base, 1 equivalent of base. ओके, किसी को प्रॉब्लम है क्या? सो राइट डाउन द एग्जाम्पल. लेफ्ट साइड मैंने लिखा है, let me know if anyone is having doubt.
Let me know if anyone is having doubt. Let me know if anyone is having doubt. अगर डाउट नहीं है तो shall I proceed forward? लिखो एग्जाम्पल में प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम लिखो, लिखो if x kilojoule, प्रॉब्लम लिखो if x kilojoule of energy, if x kilojoule of energy is released, if x kilojoule of energy is released when, if x kilojoule of energy is released when NaCl is, when NaCl is completely neutralized by HCl, completely neutralized by HCl, and when NaOH is completely, and when NaOH is completely neutralized by H2SO4, and when NaOH is completely neutralized by H2SO4, then amount of energy released is Y. Then amount of energy released is Y. Then what is the relation between X and Y? Then what is the relation between X and Y? What is the relation between X and Y? Let us solve the problem. Okay. How will you solve the problem? This is NaOH plus HCl, and you are getting NaCl plus H2O. As per as rule, strong electrolytes will be dissociated 100%. So strong electrolyte means a strong base. Na plus plus OH minus. HCl is H plus plus Cl minus. NaCl will be Na plus plus Cl minus plus H2O. ये देखो, salts are always electrolyzed in the water. Okay. So this is H plus plus OH minus. So this will produce this is giving H2O. This is giving, ठीक है ना, ऐसा. ये क्या है? This is water. This is nothing but x kilojoule. ये दिया है इसके लिए एनर्जी. Now NaOH is completely neutralized by H2SO4. So this is Na2SO4 plus 2H2O. तो ऐसा हो गया. तो this is 2Na plus 2OH minus. This is strong, हाँ, इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ. Salts are always in ion form. Either it is strong and weak, doesn't matter. अब देखो, what is the remaining one? 2 times of H plus plus OH minus is giving H2O. क्या ये तुमको नहीं दिख रहा है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कितना? 2x. देखो आगे 2 लगा है, आगे 2 लगा है या नहीं लगा है? बोलो, if anyone is having doubt. If anyone is having doubt.
किसी को भी डाउट है तो बोल सकता है रे बाबा, बोल। नो डाउट। तो तुमको वैल्यू देगा ना, एक्स की जगह पे बोलेगा कि इट इज 53 किलो जूल, 57 किलो जूल, वट एवर इट मे बी। ठीक है ना, वट एवर इट मे बी। सर आपने वो इक्वेट कैसे किया? समझ में आ रहा है क्या? एक्स एंड वाई का समझ में आया क्या? सो दे, वाई इज जस्ट डबल ऑफ एक्स, y is just double of x, y is just double of x. Shall I proceed forward? Yes, sir. Yes. अब देखो, सेम सेम प्रॉब्लम, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? सपोज दिस इज HCl is neutralized with strong base NaOH and same is neutralized with weak base, that is NH4OH. Suppose amount of energy is X and amount of energy is Y released. प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना? लिखो, इफ HCl इज, प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखो, इफ X इज, if sorry X is, HCl is, if HCl is neutralized with, if HCl is neutralized with NaOH, if HCl is neutralized with, HCl is neutralized with NaOH, then amount of energy released, then amount of energy released, amount of energy released is x kilojoule, x kilojoule. Okay, and if, and if HCl is neutralized with, and if HCl is neutralized with weak base NaOH, weak base NaOH, weak base NaOH, then amount of energy released is Y, then amount of energy released is Y. Then what is the relation between X and Y? Then what is the relation between X and Y? What is the relation between X and Y? ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, when it is, when it is यानी weak acid and weak base, weak acid neutralized with strong base and strong acid is neutralized with strong base. दो तीन चीजें मैंने बोल दिया, ठीक है ना? दो तीन चीजें मैंने बोल दिया, क्या है? पहला, प्रॉब्लम में देखो, HCl strong acid neutralized with strong base, which is nothing but same as, which is nothing but same as previous one, ये वाला. This is nothing but enthalpy of formation of water. ठीक? अब जब तुम वीक बेस लेगा ना, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा, तो that is not the, that is not the enthalpy of neutralization of water actually. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब कुल मिलाकर के, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज होंगे, उसका एनर्जी X विल बी ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, जो कि Y के बराबर है. तो X विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन Y, क्योंकि ये पूरा आयन ब्रेक ही नहीं होगा. जब पूरा आयन ब्रेक नहीं होगा, जब पूरा आयन ब्रेक नहीं होगा, तो पूरा आयन ब्रेक नहीं होगा,
तो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगा, सो x विल बी ग्रेटर देन y। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इसमें क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएटेड व्हेन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बोलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो बोलो। सर। नो सर। यस राज। नहीं सर। वेदांत नहीं स्क्वायर। सर। नो 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 नो। नहीं है। नो सर। वेद, वेद कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। So this is enthalpy of formation, enthalpy of neutralization, enthalpy of reaction, enthalpy of combustion। कुछ भी दिया हो, प्रोसेस को डिफाइन कर, प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद तुम क्या करो, उसके आगे एक वर्ड लगा दो, enthalpy change, that is heat release or heat absorbed during the process। ठीक है ना? heat released or heat absorbed during the process। Now the next and the most important, that's why I'm coming to the next slide। I'm coming to the next slide। क्या है next slide? लिखो, हेसेस, that is हेस बोल सकता था, हिस नहीं बोलना है, ठीक है ना? हेसेस लॉ ऑफ, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेजेस लॉ लिखा हुआ मिल सकता है, नो प्रॉब्लम। समेशन का मतलब क्या हो रहा है, सम, ठीक है ना? क्यों बोल रहा है सम? चलो अब देखो, कोई कुछ भी नोट नहीं करेगा, नो बडी विल राइट। सपोज ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, बहुत बार प्रॉब्लम आता है बोर्ड एंड नीट, ठीक है ना? सपोज ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, इसके लिए हीट कितना लग गया तेरे पास, HR। अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके। बट तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है डेट कैन हैंडल ओनली 60 किलो जूल, तब तो पता चला इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा बेकार हो जाएगा, वो हैंडल कर सकता था 60, रिलीज हो रहा है 100। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग इन वन स्टेप, लेट अस प्रोसीड इन सो मेनी स्टेप। मतलब क्या किया तुमने, सपोज डेल्टा H1, HR is 100, डेल्टा H1, H2, H3 and H4, सपोज दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 20, दिस इज 20, मिला करके 100, जो HR के बराबर है। अब तो इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैंने लिखवाया था डेल्टा H इज स्टेट फंक्शन विच इज डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो आइदर इट इज proceeding in one step or more than one step, delta H will be always equal, ठीक है ना? वो क्या है, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 और डेल्टा H4 को सम करेगा, वो HR के बराबर आएगा। कोई नोट नहीं करेगा, अभी मैं पहले से ही बोलता आ रहा, मैं सब लिखवाऊंगा, ठीक है ना? तो रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड करे और रिएक्शन 10 स्टेप में प्रोसीड करे, उसका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल। सपोज ये रिएक्शन ऐसा प्रोसीड किया,
Okay, suppose this is delta H5 and suppose this is delta H6 है, डेल्टा H5 एंड डेल्टा H6, यहाँ के लिए डेल्टा H7। तो अभी भी क्या होगा, ऊपर वाले रूट के लिए फॉर अपर रूट, है ना, अपर रूट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा H5 डेल्टा H6 प्लस डेल्टा H7। समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। डेल्टा H5 डेल्टा H6 एंड डेल्टा H7 का सम, तो किसी भी रूट से जा, ठीक है ना। अगर तुम यहां से कॉर्पोरेशन जाना चाह रहा है, यहां से कॉर्पोरेशन जो जाना चाह रहा है, तो कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी रूट से जा, एनर्जी विल बी सेम, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम, energy of the process will be same since it is depending on initial and final position. This is state function, this is path independent function, this is path independent function, this is path independent function। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है H6 ऐसा। पहले मुझे बोलो तब मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है ना। हाँ अभी मैंने इसको लिखवाया नहीं है, मैं सब लिखवाता हूँ, सब लिखवाता हूँ, ठीक, ठीक है, ओके। तो इनके कहने का मतलब है कि देखो अभी क्या हो रहा था, मैं फिर से समझा रहा हूँ, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, प्लीज मेक अंडरस्टैंड फर्स्ट। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन वन स्टेप, दैट इज A to B, whose enthalpy change यानी heat of the reaction is delta HR। now मैंने बोला कि suppose your instrument is having capability of 100 kilojoule to bear that। पता चला कि 100 किलोजूल की जगह पर तुम्हारे रिएक्शन से 150 किलोजूल रिलीज हो रहा है, तो डेफिनेटली योर इंस्ट्रूमेंट वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, डेट कैन नॉट बियर मोर देन 100 किलोजूल। तो मैंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया, बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली A to B, let us proceed through A to C, C to D, D to E and D to B, E to B, ठीक। now delta H1 delta H2 delta H3 delta H4, H2 H3 H4 are the energy released during the process। A to C is delta H1, C to D is delta H2, D to E is delta H3, E to B is delta H4। so all energy का sum, अब तुमको लग रहा होगा कि सपोज यहाँ पे 100 किलो जूल हो जाए, यहाँ 200 हो जाए, अरे किसी में इंडो, किसी में 100, किसी में इंडो, किसी में 100, मिला करके ओवरऑल विल बी डेल्टा HR के बराबर। हो सकता हो कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 ऐसा लिख लिया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, इन सभी का एनर्जी मिला करके किसके बराबर होगा, डेल्टा HR के। हो सकता है चलो यहाँ से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, बट यहाँ पे एनर्जी कम रहेगा, कम ज्यादा करते हुए ओवरऑल विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा HR। अब बोलो सभी लोग, चैट से बोलो यस और नो। मुझको रिपीट करना है क्या, फास्ट बोलो।
चैट से बोलो यस और नो, चैट से बोलो यस और नो। अलाप बोल रहे नहीं, युक्ता बोल रहे नहीं, अर्णव बोल रहे नहीं, अमर नहीं। यस, रिपीट करना है। सुबोध अटके बोल रहे हैं रिपीट करना है। यस सर प्लीज। अनन्या घाटे रिपीट करना है। यस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर फाइनली सेम एनर्जी रिलीज हो रही है तो कोई भी रूट से जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट खराब होगा ही। अरे इंस्ट्रूमेंट का एक जस्ट एग्जांपल लिया था मैंने। कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा बियर कर सकता है 100, लेकिन अबे चलो इसी में डेल्टा H1 में सपोज रिलीज हो जाए 150, तो इंस्ट्रूमेंट तो मेरा वही खराब हो जाए। लेकिन इस कहने का मतलब क्या है, मैं आगे जाता हूं फिर से पीछे आऊंगा, स्लाइड कम हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। अब तुम क्या करो, दिस इज बिल्डिंग का, सपोज तुम सेकंड फ्लोर पर रहते हो, ये सेकंड फ्लोर है। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करना नहीं है। सपोज तूने जंप लगाया और यहां पे आके गिरा, तो इस हाइट को क्रॉस मत कर, इस बिल्डिंग के हाइट को क्रॉस मत कर, यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन तू क्या कर, यहीं से ड्रॉप हो जा। खाते खाते वहीं पे खा रहा था, शिल्पा शेट्टी के बाजीगर की तरह गिर गया, ठीक है ना, डायरेक्टली गिर गया यहीं से। दूसरी बार तूने क्या किया, यहां से जंप लगाया, ऐसा आकर के गिरा, ठीक। तीसरी बार तेरा कोई फ्रेंड था, जंप फ्रेंड नहीं तुझे ही करना है क्योंकि मास चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज, ऐसा आकर के गिरा है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3 एंड रूट नंबर 4, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, तो पहले इस पर गिर, फिर यहां से यहां गिर, दिस इज रूट नंबर 4। सभी में mgh का वैल्यू कितना होगा मुझे बताओ, सेम होगा या नहीं होगा। हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज h। तो mgh1 mgh2, मास चेंज नहीं कर रहा हूं, mgh3, अरे सभी में क्या हो रहा है, h1 h2 h3 h4 इज सेम ना, दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल एनर्जी विल बी सेम। पहले मैंने जो एग्जांपल लिया है वो समझ में आया या नहीं, हाइट वाला। यस और नो लिखो सभी लोग फास्ट। फिजिक्स सभी लोग फास्ट लिखो, यस और नो समझ में आया या नहीं आया। समझ में बिल्कुल आया, ठीक। हाँ ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। अरे वेद बोल रहा है समझ में नहीं आया। भाई हाइट तो सेम है ना, हाइट इज mgh लिख रहा हूं मैं, mgh लिखना है, हाइट तो सेम रहेगा ना, सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक का हाइट विल बी ऑलवेज सेम, तो एनर्जी विल बी ऑलवेज mgh। वेद, एनर्जी विल बी ऑलवेज mgh। तो क्योंकि मुझे हाइट मेजर करना है, मुझे हाइट मेजर करना है, तो ऐसा मेजर कर। एक चीज देखो सभी लोग, फिर से अगर नहीं आया तो, मैं स्कूल जा रहा हूं अपने घर से, ए से बी, ए पे मेरा घर है, मुझे स्कूल जाना है। मुझे जानबूझ करके पहला लेक्चर केमिस्ट्री का था, अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं आधे घंटे लेट जाने के लिए, मेरे घर से सिर्फ 500 मीटर दूर पे था,
लेकिन मैं कॉर्पोरेशन का चक्कर मार करके आया। दूसरा पाथ मैंने ऐसा किया, एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको केमिस्ट्री अच्छा लगता था, डायरेक्टली ऐसा पहुंच गया। ठीक, तो तू किसी भी पाथ से जा, ए और एस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सपोज ये 500 मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज 500 मीटर, है ना? तो मैंने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी मेजर किया जो सिर्फ पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देन वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना, तो वर्क डन तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, तू किसी भी पाथ से जा, क्योंकि डेट इज डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डी लिखता था, एफ डॉट डी लिखता था, डिस्प्लेसमेंट तो यही है, सिर्फ 500। अब तू चाहे इस रास्ते से जा चाहे किसी भी रास्ते से जा, मुझे तो लेना डिस्प्लेसमेंट था। वैसे ही मैं किसी भी रास्ते से मैं जाऊं, एंथैल्पी विल बी ऑलवेज सेम, सिंस एंथैल्पी इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। पहला डे फर्स्ट वर्क डन इज डिपेंडिंग ऑन पाथ, इसलिए इंटीग्रेशन लिखता था, एरिया अंडर द कर्व लिखता था। बट एंथैल्पी इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, इट इज ऑलवेज एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी टिल नाउ, अभी तक जो जो पढ़ा है, तो डेल्टा ई डेल्टा एच आर पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो तू किसी भी पाथ से जाएगा उसका एंथैल्पी विल बी ऑलवेज सेम। इसलिए मैंने रूट नंबर नीचे का लिया, रूट नंबर ऊपर का लिया। नीचे में मैंने 3-4 स्टेप में किया, तो ए से बी डायरेक्ट जाने का और 1 2 3 4 जाने का एंथैल्पी विल बी ऑलवेज सेम, एंथैल्पी विल बी ऑलवेज सेम। ऐसे ही ऊपर गया 5, रूट 5, रूट 6 एंड रूट 7, इन सभी का एंथैल्पी और एचआर का एंथैल्पी विल बी ऑलवेज सेम। हमने इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल लिया था वो तो कोई जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली। सपोज स्टेप नंबर 1 में ही 100 किलो जूल से ज्यादा निकल गया तो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब है समझाने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए था कि मैं इसको 5 स्टेप में कर कर करके किया जिससे इंस्ट्रूमेंट ब्रेक नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि मुझे उसका सम उतना ही लाना है, तो के लिए था। फिर से बोलो, नहीं आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा, चैट के थ्रू जाओ, चैट के थ्रू जाओ, यस और नो, या बोलो डायरेक्ट बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Sir, अभी भी डाउट है तो बोल। विरजा, अभी भी No, डाउट है तो sir. बोल। मैं इंस्ट्रूमेंट का जो एग्जांपल लिया था वो तो रॉन्ग एग्जांपल लिया था, वो सिर्फ समझने के लिए था। मेरे कहने का मतलब है कि तू किसी भी पाथ से जा, किसी भी पाथ से जाएगा, इट्स एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल, वो ये बोल रहा है। सिंस इट इज डिपेंडिंग ऑन initial and final position, since it is depending on initial and final position, still anyone is having doubt, please let me know। बोलो अनया, समझ में आया या समझ में नहीं आया? ये यस किसके लिए है? समझ में आया या समझ में नहीं आया? बोलो। आया समझ में। आया समझ में। सो दिस वन इज यस फॉर अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। बोलो अभी आया भी, समझ क्योंकि में। हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में इस पर एक प्रॉब्लम मिलेगा भाई, और नीट में तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना? सो शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड, यस और नो? यस, यस, वेरी गुड। सो आई एम प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड इन द सेंस, पहले डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन द डेफिनेशन प्लीज, राइट डाउन द डेफिनेशन। हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन के लिए, हेजेस इज साइंटिस्ट, ओके।
नहीं समझ में आ रहा तो हिस से याद कर लिया। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, लिखो लिखो, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन वन स्टेप, reaction is proceeding in one step, reaction is proceeding in one step or more than one step, reaction is proceeding in one step or more than one step, reaction is proceeding in one step or more than one step, then 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 enthalpy change, then enthalpy change will be always equal, then enthalpy change will be always equal। ठीक है ना, नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट लिखना है। लिखो सिंस enthalpy is, since enthalpy change is, since enthalpy change is state function, since enthalpy change is state function, so it is, so it is, so it is depending on initial and final position only, so it is depending on initial and final position only, so it is depending on initial and final position only। Okay, now again write down the statement, write down the statement क्या है फिर से लिखो, let us assume, let us assume any reactant, let us assume any reactant, let us assume any reactant A, any reactant A is converted into B in one step, into one step, and enthalpy change is, and enthalpy change is, and enthalpy change is delta HR, delta HR। ठीक है, उसके बाद लिखो and and if, and if it is proceeding, and if it is proceeding in more than one step, and if it is proceeding in more than one step, more than one step, and enthalpy changes are, enthalpy changes are delta H1, delta H1 comma delta H2 comma delta H3 and delta H4 for respective, for respective steps, for respective steps, then according to Hess's law, then according to Hess's law, then according to Hess's law, लिखो delta HR equals to,
delta HR equals to delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4. ठीक, हाँ या ना? तो अब सभी लोग फिगर बनाओ जल्दी से, प्लीज फास्ट। ओके, सब लोगों ने नोट कर लिया? सब लोगों ने नोट कर लिया क्या? Shall I proceed forward? फिगर बनाओ, ऊपर वाला नीचे वाला सब ऐसा करके। ठीक है ना? So let us proceed forward. Let us proceed forward. ऐसा लिखो, फॉर अपर पाथ के लिए ऐसा था, फॉर लोअर पाथ के लिए ऐसा था, दोनों का एंथैल्पी विल बी सेम। तो रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन वन स्टेप और रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन मोर देन वन स्टेप, डजंट मैटर, its enthalpy change will be always equal for the reaction। ठीक है ना? इस पर प्रॉब्लम बोर्ड से लेकर के नीट आईआईटी तक तुमको आना ही आना है। ठीक है ना? तो हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम लिखते हैं, एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक दो एग्जाम्पल मैं लिख करके करूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज जस्ट लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर याद हो, मैंने उस टाइम पे बोला था कि ये तुमको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी वैसा तुमको काम देगा। चलो, पहले ये बोलो मुझे सभी लोग कि समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? फिर से बोलो। Yes, sir. यस सर, हाँ आया? हाँ, तो Yes, वेरी गुड। sir. मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, हाँ सो सर। लेट अस राइट डाउन द एग्जांपल। इंपॉर्टेंट वन, हाँ, इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट वन। ये एग्जांपल नहीं है। सो लेट अस राइट डाउन द एग्जांपल। लेट अस राइट डाउन द एग्जांपल। क्या बोल रहा है यहाँ पर एग्जांपल में? ठीक है ना? लिखो, स्टेट प्रॉब्लम लिखो। लिखो, गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, गिवन द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन लिखो, रिएक्शन इज सी। सी क्या है? डायमंड है। डायमंड कार्बन का ही होता है, प्लस O2 इज गिविंग CO2। ठीक है ना? एंड डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज, डेल्टा H इज माइनस 94.5 किलो जूल। सेकेंड लिखो, सी ग्रेफाइट plus O2 is giving again CO2। So delta H is
So delta H for the reaction is minus 94 किलोजूल। तुमसे बोल रहा है प्रॉब्लम में कि फाइंड आउट, मुझे निकालना क्या है, फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज, लिखो फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज इन, फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कार्बन सॉलिड डायमंड से कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, डायमंड से ग्रेफाइट चेंज होने में कितनी एनर्जी लगी, तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, है ना। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3rd। देखो मैं ऐसा क्या करूं फर्स्ट एंड सेकंड को कि बिकम 3rd वन, बोलो फर्स्ट एंड सेकंड को मैं क्या करूं कि बिकम 3rd वन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तुम क्या लिखेगा, कैसे लिखेगा कि बिकम 3rd वन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐसा क्या कर, तो ऐसा अगर याद हो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में कराया था, क्या था, अगर रिएक्शन को मैं ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं K1 K2 वगैरह कुछ, तो ऐसा याद है। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है। देखो अगर तुमने फर्स्ट माइनस सेकंड कर लिया, यू विल गेट 3rd वन। मैं एक प्रूफ करके देता हूं, हाँ मैं प्रूफ करके देता हूं किसका, फर्स्ट माइनस सेकंड का। देखो फर्स्ट प्लस में है सी डायमंड, माइनस सी ग्रेफाइट, प्लस O2 ऊपर वाला, माइनस O2 नीचे वाला, CO2 ऊपर वाला, CO2 नीचे वाला, सब कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास, सी डायमंड माइनस सी ग्रेफाइट इज 0। भाई ये मैथमेटिक्स तो है नहीं कि मैं इक्वल्स टू 0 लिख दूं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा तभी तो रिएक्शन होगा ना, इसलिए सी डायमंड उधर जा करके प्रोडक्ट हो गया सी ग्रेफाइट में, ठीक है ना। तो जो ऑपरेशन तू यहां पे लिखेगा वही ऑपरेशन यहां पर भी करेगा, बस। अब बोलो दोनों का वैल्यू पुट करो, दिस इज H1, दिस इज H2, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी द आंसर फास्ट। Tell me the answer. Tell me the answer fast. Tell me the answer fast. भाई बाई मिस्टेक मुझसे रब हो गया बोर्ड ही, बट कोई बात नहीं, पहले आंसर बोल दो। 0.5 किलो जूल अला 0.5 0.5 0.5, नो प्रॉब्लम। मैं बोर्ड को फिर से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, बाई मिस्टेक मुझसे बोर्ड ही खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो पहला वाला एनर्जी का डाटा, पहले वाले एनर्जी का डाटा हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन वाले में, हेजेस लॉ ऑफ हीट समेशन में मुझे कोई बताएगा क्या, क्योंकि मैंने तो रब ही कर डाला, भाई मैंने तो रब ही कर डाला। डायमंड वाले का, सी डायमंड वाले का कितना था, सी डायमंड से सी ग्रेफाइट, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी
पहले वाले का डेल्टा H1 कितना लिया था मैंने, आई थिंक इट वाज 94.5 एंड डेल्टा H सेकेंड ये था 94, इट वाज 94 किलो जूल। तो मेरे ख्याल से डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 किया है ना, तो क्या हो जाएगा, तो दिस इज माइनस 94.5 माइनस, मैंने प्रॉब्लम पहले ही बोल दिया है कि आंसर प्लस माइनस के डिफरेंस में हमेशा देगा। देख लो सभी लोगों का आंसर प्लस माइनस का भी यहाँ डिफर आ रहा था। -94, अच्छा आंसर बताया सबने, ठीक है ठीक है। अर्णव नायर 0.5 भक्ति, लेकिन माइनस साइन के साथ, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, shall I proceed forward? Shall I proceed forward? So let us move to next problem. आगे बढ़ूं क्या, yes or no? जल्दी से बोलो yes or no. Shall I proceed forward? Yes or no? Shall I Yes. proceed Yes, forward? sir. Yes, sir. क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना, अभी हम लोग क्या है, Yes, फिजिकल sir. क्लास होता तो हम लोग डायरेक्टली मैं बोल सकता था आ रहा है, Yes, समझ में sir. नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। यस, चलो लिखो प्रॉब्लम, लिखो राइट डाउन द प्रॉब्लम, राइट डाउन द प्रॉब्लम, राइट डाउन द प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। लिखो if enthalpy of formation of if enthalpy of formation of if enthalpy of formation of if enthalpy of formation of, एक ही चीज गलत बोल दिया भाई, एंथैल्पी ऑफ जहाँ पे फॉर्मेशन बोला था, प्लीज सब लोग कट करके एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ, प्लीज स्लाइटली चेंज, एंथैल्पी ऑफ combustion of enthalpy of combustion of enthalpy of combustion of carbon comma hydrogen and C2H4R, enthalpy of combustion of carbon comma hydrogen and C2H4R are 1000 किलोजूल माइनस साइन के साथ, -1000 कॉमा -560 and 3000 माइनस साइन है, -3000 किलोजूल सभी में है पर मोल। then find out enthalpy of formation of C2H4, then find out enthalpy of formation of C2H4, ठीक है ना, then find out enthalpy of formation of C2H4. I am repeating the question. If enthalpy of combustion of carbon comma hydrogen and C2H4 are -100 kilojoule comma -560 and -3000 kilojoule per mole, then find out enthalpy of formation of C2H4. तो ये प्रॉब्लम तुमको करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगा, तो मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, ठीक है ना। कैसे हेल्प किया मैंने, देखो पहला लिखो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन?
कंबस्शन का मतलब बर्न करना हुआ ना, एंड तुमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन, इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन बर्न करना है। सेकेंड क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ कार्बन, कार्बन को बर्न करो। देन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4 दिया है। कहने का मतलब है नाउ स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्वेशंस, स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्वेशंस। बैलेंस करो, कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 4, so this is 2. Now balance oxygen, 2 plus 4 that is 6 is 3. Okay, and what is to be calculated, बोला है तुमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब डेफिनेशन पे जाओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि दैट मस्ट बी फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस वन। So this is fourth one, this is fourth one, this is equation number 4. अब बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा क्या करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा क्या करूं कि बिकम फोर्थ वन। सभी लोग ट्राई करो, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। Please tell me what must be done, what must be done, what must be done। 1 2 3 4 को मैं क्या करूं, देखो चलो ध्यान दो, यार देखो सभी लोग प्लीज, nobody will write, nobody will write right now, okay? So first प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, देखो सेम इन केमिकल इक्विलिब्रियम, गिवन इक्वेशन एंड फाइनल इक्वेशन का देखो, H2 किधर है, H2 किधर है, बोलो H2 किधर है, लेफ्ट साइड, इधर किधर है, लेफ्ट साइड, इसका मतलब है दिस मस्ट बी प्लस साइन, डेल्टा H विल बी प्लस साइन, फर्स्ट वाला प्लस होगा। कार्बन को देखो, कार्बन लेफ्ट साइड, सेकंड में किधर है, लेफ्ट साइड, पहले प्लस डिफाइन कर लो उसके बाद देखता हूं। देखो प्रोडक्ट में यहाँ पे किधर है, C2H4 इज इन प्रोडक्ट, जबकि थर्ड वाले में किधर है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बनाना है तो क्या करना चाहिए, माइनस हो जाएगा। अगर तुमको बिल्कुल स्पेसिफिकली लिख करके दिखाना है तो मैं लिख करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन अब एक चीज जाओ, इधर 2C है इसलिए इक्वेशन नंबर 1 मस्ट बी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2। ध्यान से देखो, पहले में 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकम 2S2, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ बिकम 1। पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को लिख लो, सेकेंड में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस थर्ड, माइनस थर्ड, माइनस थर्ड, सॉरी दिस इज C2H4 माइनस 3O2, प्रोडक्ट साइड जाओ, 2S2O, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना, फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकेंड वन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, so this is 2H2O प्लस ऐड किया, that's why 2CO2, take
-2 CO2 कम पड़ रहा है जगह, ऊपर लिख रहा हूं -2H2O। देख लो क्या हो रहा है। O2 1, O2 2, 3 O2 कट गया, 2H2O 2H2O कट गया, ठीक है ना। CO2 को, ये देखो CO2 कट गया। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग वन? 2H2 2H2 प्लस 2C2, रिएक्टेंट वाला भाग करके देख, माइनस साइन में है, प्रोडक्ट साइड चला गया, हो गया। यही तो लाना था भाई, 4 विच इज इक्वल टू 4 1। इसका मतलब है डेल्टा H4 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2 times डेल्टा H1 प्लस 2 times डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H3। ओके, ठीक है ना। मैंने अब वैल्यूज दिया था। डेल्टा एस ऑफ कंबस्टन ऑफ सी कितना था? -1000। -1000 का मीनिंग क्या हो गया? सेकंड वाला, दैट इज 2 इंटू -1000 प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाले में कितना था? H2 का इज -560। देख लो, हमेशा प्लस माइनस का डिफरेंस ही आएगा। माइनस ऑफ -3000। प्लीज टेल मी द आंसर। -2000 माइनस प्लस 3000। So this is simply -120 kilojoule. Let me know the complexity. अरे वाह, नंदिनी -120 100%, ओमकार, श्रुति -120 100% करेक्ट। तुम लोगों ने क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किया है, इसलिए तुम लोगों को एक एक कैडबरी देना है मुझे। देना है मतलब तुम लोग दोगे। खुश हो जाओ। अथर्व भी देंगे, अथर्व भी देना चाहते हैं। आगे पढ़ूं क्या मैं? Shall I proceed forward? Anyone is getting problem? Anyone is getting any type of problem? Please let me know. Anyone is getting any kind of doubt? Yes or no? जल्दी से बोला जाए क्योंकि न्यूमेरिकल है। बोल भाई। नहीं है सर। नहीं है सर। No problem. नहीं नो है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। तुम लोग तो काफी इंटेलिजेंट निकल गए भाई। चलो आगे बढ़ूं मैं। न्यू स्लाइड। ओके,
इस पे और प्रॉब्लम करना है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक प्रॉब्लम किया, 2 प्रॉब्लम किया। सर मुझे लगा आप जल्दी छोड़ देंगे। क्या करना है, जल्दी छोड़ना है वो भी बोल सकते हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, सब मेरे हाथ में है। जल्दी बोलो क्या करना है। जल्दी दिमाग छोड़ दो सैचुरेट हो सर। गया। जल्दी छोड़ो सर। छोड़ दो छोड़ दो दो सर प्लीज। छोड़ दो छोड़ दो। ओहो यस सर। हो। छोड़ दो। सर एक पूछे थे साथ छोड़ दो। बोल रहे हैं। छोड़ दो छोड़ सर। छोड़ दिया सर जाए। पूछे थे छोड़ दो क्या जल्दी। चलो अच्छा छोड़ देता छोड़ हूँ, तुम दो लोग क्या ने किया जल्दी है थैंक तो। यू पूछो। सर। थैंक यू सर। ठीक है ना, जल्दी कल छोड़ रखना दूं है, क्या? कल रखना है ना लेक्चर। कल सर इसका जैसे वो आपको लेक्चर सही रखना लगे। है, कल तो है ना। हाँ हाँ सर है। हाँ चलो अच्छा, कल के लिए हम लोग, ओके। तो आज का लेक्चर हम, हाँ बोलो, आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, बाय सर। बाय, गुड नाइट। इंगले बाय, गुड नाइट। इंगले। चलो ओके, थैंक यू, थैंक यू।